All right, you lovely children, how are you? Welcome back to another super interesting and super amazing biology live session on the wonderful platform of Avanti. Today we are going to learn about the sexual reproduction in flowering plants, and we are going to start from, yes, microscopic. What all things just glass, right? So last class we learned about a flower. Yes, what are the parts? Essential, non-essential. Then in essential we came to know stamen and pistil. They are the essential part of flower. They are the male and female reproductive part of the flower. Yes. Then you have what? In the stamen you have anther. Yes. And then microsporangium. Okay, Anush is not able to hear me. Let me just fix this problem. Okay. फ्लावर के पार्ट हमने सीखा कि हमें गैमेट्स देखने हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यस, तो गैमेट्स आर इंपॉर्टेंट मीन हमें ये देखना है कि कौन से स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी लर्न कि स्टैमेन एंड पिस्टिल आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो पहले हमने स्टार्ट करा स्टैमेन से, राइट? हमने स्टार्ट करा कहाँ से? स्टैमेन से. यस, तो स्टैमेन में हमने क्या चीजें सीखी? हमने सीखा कि एंथर क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. फिर उसके अंदर हमने देखा कि माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं. तो माइक्रोस्पोरेंजियम में आपका कैसा स्ट्रक्चर है हमने ये सीखा, राइट? लेट मी जस्ट चेक out with the homework. How many of you did the homework? Raise your hand. How many of you did the homework? Raise your hands. Dipali did it. Yes, so many are raising hands. Awesome. Okay. So if you have done the homework, you might have a very good idea of what we learned yesterday, right? So in today's class, we are going to start off with these things we had learned. We are going to start off with, this was the anther structure. This was your microsporangium. Today we will learn about what? Sporogenous tissue, right? Inside the middle tissue is what? Sporogenous tissue. So we are going to learn about sporogenous tissue क्योंकि हमारा main goal क्या है? To see कि how gametes are getting formed, right? तो अब हम सीखेंगे. Yes, तो formation of male gamete, you have sporogenous tissue. वो आपको माइक्रोस्पोर्स देंगे. These microspores डेवलप करेंगे pollen grain में, ये डिवाइड करेंगे और मेल गैमेट्स देंगे. Any idea? One pollen grain gives how many male gametes? Anyone has any idea about it? One pollen grain gives you how many male gametes? Yes, you are raising hands. Can you reply? Yeah? One pollen grain gives you how many male gametes? Reply on the co-host, right? Co-host Neha Chaursia. Yes. Yeah, so I am getting 2 as answer, but yes, you have started answering in the right chat now. Yes. Cool. So how many pollen grains? How many male gametes do you get from one pollen grain? You get 2. How many? 2. How many? 2. ठीक है. अभी हम देखेंगे कौन सा प्रोसेस होगा. Which process will help sporogenous tissue to make microspores? ठीक है. Any idea? Meiosis होगा, mitosis होगा, क्या होगा? Sporogenous tissue आपका 2n है. ठीक है. ये प्लांट एंजियोस्पर्म डिप्लॉयड होता है, राइट? आपको गैमेट्स चाहिए. आपको याद है क्या प्रोसेस होना चाहिए? आपको रिड्यूस करना है क्रोमोसोम नंबर. वी हैव लर्नड इट, नो? माइटोसिस, मियोसिस. तो कौन सा प्रोसेस होना चाहिए अगर हाफ करना है तो? श्रुति एक बार फिर से सोचो. अगर स्पोरोजेनस टिश्यू 2n है, मुझे माइक्रोस्पोर्स में n चाहिए, तो कौन सा प्रोसेस होना चाहिए?
मियोसिस, राइट। तो ये मियोसिस का प्रोसेस होगा, तभी आपको माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं? मेच्योर होते हैं, डेवलप होते हैं, बस ग्रो करते हैं, डेवलप करेंगे पॉलन ग्रेन में। आपका पॉलन ग्रेन भी क्या है? एन है, ठीक है। ये जो पॉलन ग्रेन है ये क्या देने वाला है? मेल गैमेट्स। दिस पॉलन ग्रेन इज गोना गिव यू मेल गैमेट्स। जो भी स्ट्रक्चर गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं पता है? व्हाट डू वी कॉल देम? एनी आइडिया? अभी जी से स्टार्ट होता है, ई पे एंड होता है, एनी आइडिया? एनी आइडिया? यस, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, राइट? यस, यस गौरीश। तो इट इज व्हाट? गैमेटोफाइट। ये कौन सा गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है? मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है। आप क्या बोल सकते हो उसको? ये मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। ये सिंबल है मेल को डिनोट करने के लिए, दिस इज द सिंबल टू डिनोट मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन आपका क्या है? मेल गैमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि ये मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, इट इज मेल गैमेटोफाइट। The structure of plant which is going to give you male gametophyte. All right? Now, अभी हमने बेस सीखा, अब हमें थोड़ा डिटेल्स में इसको सीखना है। I told you कि ये मियोसिस है। क्या बनाएगा ये मियोसिस? माइक्रोस्पोर्स, है ना? माइक्रोस्पोर्स बनने वाला है। तो मैं बोल सकती हूँ इस प्रोसेस को कि सिंस ये माइक्रोस्पोर्स बना रहा है, ये प्रोसेस क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर पिछला क्लास याद है आपको, हमने ऐसे ब्रीफ में सीखा था इसको, राइट? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स formation of microspores, right? Formation of microspores, the process by which microspores are formed from the sporogenous tissue with the help of meiosis is called as microsporogenesis, ठीक है। अभी हम सब we all took birth, right? Our mothers, they gave us birth, right? They gave birth. तो हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी माँ ने हमें जन्म दिया, राइट? आवर मदर गेव बर्थ टू अस, राइट? सिमिलरली यहाँ माइक्रोस्पोर्स है, माइक्रोस्पोर्स का भी तो कोई मदर होगा, राइट? यस। वो कौन से मदर है? उनको हम क्या बोलते हैं? जो सेल माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे, आप उनको क्या बोलते हो? माइक्रोस्पोर। गेस, क्या बोलोगे? कौन सा सेल बोलोगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ऑसम मुस्कान, यस, एमएमसी, ठीक है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू, ये सबको पता है ना? टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यू, राइट? तो स्पोरोजिनस टिश्यू में बहुत सारे सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स। वह सेल, द सेल which is going to undergo meiosis to produce microspore, आप उस सेल को क्या बोलोगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। आप उसको क्या बोलोगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल आपका कुछ नया नहीं है, ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल is the cell present in the sporogenous tissue. Microspore mother cell is the cell present in the sporogenous tissue, right? कैसा सेल है ये? The cell which is going to do meiosis, ठीक है। The cell which is going to do meiosis to produce microspores, उस सेल को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। समझ में आया? Dipali, I repeated it also for you, right? Microspore mother cell. क्यों? क्योंकि ये कौन सा मदर है? ये जो मदर है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? माइक्रोस्पोर, ठीक है।
वो है क्या? इट इज पार्ट ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू। तो वो जो भी सेल्स जो मियोसिस करेंगे, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, वो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है। कौन सा प्रोसेस करते हैं? मियोसिस। अभी आपको याद है मियोसिस करेंगे अगर, तो डॉटर सेल्स कितने प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस से? ऑसम, प्रियंका हैज आंसर्ड इट, मुस्कान हैज आंसर्ड इट, 4। तो मेरे को ये बताओ, अगर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो अगर मियोसिस कर रहा है, आपको कितने सेल्स मिलेंगे? कितने माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे? 4 मिलेंगे। कितने माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे? 4 माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे। और ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स है, सारे के सारे क्या है? हैप्लॉइड है। समझ में आया? हमने क्या क्या सीखा? एक स्पोरोजिनस टिश्यू हमें पता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू का जो सेल मियोसिस करता है उसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। These microspore mother cell produces microspores by meiosis। कितने माइक्रोस्पोर्स? 4 माइक्रोस्पोर्स। चारों के चारों हैप्लॉइड होंगे क्योंकि द प्रोसेस विच वाज फॉलोड वाज मियोसिस। अभी ये हैप्लॉइड सेल्स क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन बनाएंगे, जो आपका मेल गैमेटोफाइट है। एंड फाइनली फाइनली जो आपको चाहिए वो मिल गया, दैट इज व्हाट? मेल गैमेट। यस या yes? Okay, perfect. So some of you are asking me why mother cell we say. In biology, whenever a cell divides, you always say what? The new ones are called as daughter cells, right? And this is called as what? Mother cell. Yes? So this is something which we follow in biology. Always we use daughter cells and what? Mother cells, right? For new ones, we always use daughter cells. We don't say son cells have. Okay? Who had asked this? Aryan. Is this clear now? This is something which we follow in biology. It should be followed, right? Yes. So your microspore mother cell, they are going to produce the microspores. They are haploid. They develop into male gametophyte, pollen grain. Now, अभी आपके बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? They will ask you explain microsporogenesis. What is microsporogenesis? आप क्या करोगे? आप ये फ्लो चार्ट बनाओगे, ठीक है? जैसे ही आप ये फ्लो चार्ट बनाओगे, it will become very easy for you to write it down, to pen it down. लिखना बहुत ही easy हो जाएगा, ठीक है? वो कैसे बोलेंगे? एक्सप्लेन करो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर वो 5 मार्क्स में पूछते हैं तो आपको पूरा फ्लो चार्ट बनाना है। उसके बाद आप क्या एक्सप्लेन करोगे? The cells of the sporogenous tissue which undergoes meiosis to produce microspores are called as microspore mother cell. And the process of formation of microspore from microspore mother cell is called as microsporogenesis, right? Microspores are haploid. Microspore mother cells, they are diploid. Microspores develop into pollen grain. These pollen grains are the male gametophyte, and these pollen grain will give you 2 gametes. This is how you are going to explain. अब मेरा एक सवाल आपसे, अगर ये pollen grain N है, आपको ये 2 मेल गैमेट दे रहा है, 2 मेल गैमेट, एक pollen grain 2 मेल गैमेट दे रहा है, और आपको पता है इसका क्रोमोसोम नंबर क्या है? ये सेम है, N। इसका क्रोमोसोम नंबर भी सेम N है। अभी आप मेरे को बताइए, अगर ये भी N है और ये भी N है, तो कौन सा डिवीजन किया होगा पॉलन ग्रेन में कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आए? कौन सा इक्वेशनल डिवीजन है? ऑसम, आर्यन, मृणाली, एवरीवन हैज आंसर्ड यस। कौन सा प्रोसेस किया है इन्होंने? इन्होंने माइटोसिस किया है। समझ आया?
बहुत सिंपल है, हमेशा लॉजिक। जब हम लॉजिक यूज करेंगे ना चैप्टर बहुत इजी होगा। स्पोरोजिनस टिश्यू, पूरा का पूरा जो प्लांट है वो 2n है, तो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया भी 2n है, हमें पता है। लेकिन अगर माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं हमें एन चाहिए, क्योंकि इसका फीमेल गैमेट से हमें फ्यूजन कराना है। फीमेल गैमेट भी हमें एन चाहिए। जब एन और एन फ्यूज करेगा तभी आपको 2n मिलेगा ना, इसलिए हमें चाहिए क्या, एन। तो हमें अगर एन चाहिए तो हमें कौन सा प्रोसेस कराना था, मियोसिस। अब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अगर अब हम डिवाइड करेंगे तो n/2 हो जाएगा, हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं वो n रहे। तो अब जो भी डिवीजन होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा, सॉरी, दैट विल बी व्हाट, माइटोसिस, राइट। ये आपका हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? रेज योर हैंड्स if you have understood what I explained just now. Easy है? Yes, बहुत easy है, right? Yes, okay. अब हम सीखेंगे, मैंने क्या बोला आपको, ये जो मेल गैमेटोफाइट है ना पॉलन ग्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता है जब पॉलिनेशन होता है तो क्या एक प्लांट से दूसरे प्लांट में क्या जाता है, डेफिनेशन पढ़ा होगा ना आपने, transfer of pollen grain from anther of one plant to the stigma of another flower, right? तो क्या ट्रांसफर हो रहे हैं, pollen grain ट्रांसफर हो रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट। तो हमें सीखना क्या है पहले, pollen grain। अब हम क्या सीखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain, और हम सीखेंगे कि pollen grain मेल गैमेट कैसे बना रहा है। ठीक है, हमने सीख लिया मेल गैमेटोफाइट कैसे आया। अब हम सीखेंगे कि पॉलिन ग्रेन मेल गैमेट्स कैसे बना रहा है। हमें पता है वो माइटोसिस कर रहा है, बट कैसे, वो क्या कंडीशंस है, क्या क्या चीजें हैं पॉलिन ग्रेन में जिससे कि वो मेल गैमेट्स बना रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, हम क्या सीखने वाले हैं? यस, क्लिक ऑन यस इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। या, ऑसम, ओके, यस। तो अभी हम सीखने वाले हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स का सबसे पहले हमने सब कुछ का क्या सीखा, स्ट्रक्चर। तो हम पॉलन ग्रेन्स का भी स्ट्रक्चर सीखेंगे। ठीक है, किसी को पता है पॉलन ग्रेन में कितने लेयर्स होते हैं, कितने लेयर्स होते हैं पॉलन ग्रेन में? 2। ठीक है, बाहर का जो लेयर होता है आप उसको क्या बोलते हो, बाहर का लेयर क्या बोलते हो, एक्साइन, है ना। एक्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू आउटसाइड। ठीक है, अंदर का जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटाइन। ठीक है, अब रिमेम्बर स्पोरोपोलेनिन हमने सीखा था, कौन स्पोरोपोलेनिन सिक्रीट कर रहा था, किसी को याद है क्या, किसी को ये चीज याद है? हमने सीखा था कि स्पोरोपोलेनिन का सिक्रेशन कोई कर रहा है। यस, ऑसम, प्रियंका, दीपाली, आर्यन, everyone has answered. Muskan, Roshni, Sakshi, awesome. Happy, I'm so happy. Okay, yeah. So एक्साइन किससे बना होगा बताओ फिर? एक्साइन बाहर का लेयर है ना, एक्साइन किससे बना है, टपेटम के सिक्रीशन से बना है, और वो क्या है, व्हाट इज दैट, यू नो, स्पोरोजिनस टिश्यू। सॉरी, व्हाट इज दैट, स्पोरोपोलेनिन। किससे बना है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, किसने सिक्रीट किया, टपेटम ने सिक्रीट किया। ठीक है, अभी मैं कुछ ड्रॉ करने वाली हूँ, ऐसा कुछ, पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा, डार्क दूसरा कलर यूज करती है, दिखेगा। इसका मतलब क्या है, ऐसा है, एक्साइन आपका ऐसा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, मैंने शो क्या किया है, वहां एक्साइन है ही नहीं, वहां पे एक्साइन नहीं है। तो एक्साइन नहीं है मतलब क्या नहीं है, स्पोरोपोलेनिन नहीं है, राइट। अगर एक्साइन नहीं है तो मतलब स्पोरोपोलेनिन इज नॉट देयर, राइट। और कोई बोल सकता है मुझे वह पार्ट पॉलन ग्रेन का
जहां पे एक्साइन प्रेजेंट नहीं है, जहां पे आपका इंटाइन स्पोरोपोलिनिन से कवर्ड नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? यस रोशनी, परफेक्ट। हम इनको क्या बोलते हैं? जर्म पोर। हम इनको बोलते हैं जर्म पोर। वह पार्ट पॉलिन ग्रेन का जहां पे आपको स्पोरोपोलिनिन नहीं मिलेगा। एक्साइन पूरा कंटिन्यूस है, लेकिन ऐसे पार्ट हो सकते हैं जहां पे एक्साइन स्पोरोपोलिनिन नहीं होगा, और उसको हम जर्म पोर बोलते हैं। इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या? जर्म पोर, जर्म पोर, कोई पोर है, राइट? जर्म पोर, यहाँ पे कुछ होने वाला है। जर्म पोर, जर्म से रिलेटेड कोई वर्ड मेरे को बताओ आप। जर्मिनेशन, जर्मिनेशन है ना? यस, ऑसम रोनाली। तो जर्म पोर से क्या होने वाला है? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या होने वाला है? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन का मतलब आपका पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। आपका पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो कौन सा लेयर बाहर आएगा? एक्साइन तो नहीं है आपका, कंटिन्यूअस आपका क्या है? एंटाइन। अगर किसी चीज को बाहर आना है तो एंटाइन आपका ऐसे बाहर आएगा, ये वाला जो है ना पार्ट, ये ऐसे एक्सटेंड होगा और क्या बनेगा? पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो हम सीख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कैसे करता है और कैसे दो मेल गैमेट बनाता है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन आपका ना माइटोसिस करेगा, हमने सीखा है ना माइटोसिस करेगा। माइटोसिस जब वो करता है, दो टाइप के सेल बनाता है, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। अब मेरे को आप ये बताइए, कौन सा छोटा लग रहा है इसमें? जेनरेटिव सेल छोटा लग रहा है या वेजिटेटिव सेल छोटा लग रहा है? Which one is small? You can write in, abbreviation. G. If you write G also, I will understand. I just want your responses. Yes, Ritika. Yeah, perfect. ठीक है, तो जेनरेटिव सेल है जो आपका छोटा है। ठीक है, हम डायग्राम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट? तो जेनरेटिव सेल जो है आपका वो स्मॉल होता है और वेजिटेटिव सेल जो होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, तो हमने सीखा कि पॉलिन ग्रेन जब माइटोसिस करना स्टार्ट करता है, दो सेल बनाता है अंदर में। वो दो सेल होते हैं वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। ठीक है, अब आपका ये जो है इंटाइन, ये क्या होने वाला है? पॉलिन ट्यूब बनाने वाला है। मतलब क्या होगा? पॉलिन जर्मिनेशन। ठीक है, पॉलिन जर्मिनेशन। ओके, तो अभी ध्यान से देखेंगे हम क्या हो रहा है। ये आपका मान लो आउटर लेयर। ठीक है, इस आउटर लेयर में हमें पता है ये वाला पार्ट में ना क्लोरोपोलिनिन नहीं है। ठीक है, अभी अंदर का पार्ट बनाते हैं। अंदर का पार्ट आपका क्या है? इंटाइन है ना? इस इंटाइन में हमने देखा कि जेनरेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स है आपके, है ना? जेनरेटिव छोटा, वेजिटेटिव बड़ा, है ना? वेजिटेटिव बड़ा, जेनरेटिव छोटा। ठीक है, अब इसका धीरे धीरे क्या होने वाला है? जर्मिनेशन होने वाला है। मतलब क्या बनने वाला है? पॉलन ट्यूब बनने वाला है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अभी आपको आपका जो जेनरेटिव सेल है, हम उनको जेनरेटिव सेल क्यों बोलते हैं पता है? जेनरेटिव सेल क्यों बोलते हैं? ये तो वेजिटेटिव वाला जो पार्ट था वो इधर आ जाएगा एकदम कॉर्नर में, यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म वगैरह। जेनरेटिव सेल क्या करेगा? क्यों इसका नाम जेनरेटिव है? क्यों इसका नाम जेनरेटिव है? क्योंकि ये जनरेट करने वाला है क्या? वही जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है, मेल गैमेट। आपका जो जेनरेटिव सेल है वो कौन बनाएगा? आपका जो मेल गैमेट है वो कौन बनाएगा? जेनरेटिव सेल। ठीक है, तो आपका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया। ठीक है,
धीरे धीरे आपका जनरेटिव सेल जो बनाया है क्या उसने, माइटोसिस, जनरेटिव सेल ने एक और माइटोसिस किया और उसने क्या बनाया, 2 मेल गैमेट। तो आपको ये सीखना है, ये जो मेल गैमेट्स आए हैं वो किस सेल से आए हैं, जनरेटिव सेल से आए हैं। ये वाला जो न्यूक्लियस है वो कौन सा न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। इसको हम कभी कभी, अगर आप पढ़ोगे बुक अच्छे से, अगर आप अच्छे से बुक पढ़ोगे तो आप सीखोगे कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो क्या है, ये पॉलन ट्यूब का न्यूक्लियस है, ठीक है। इसलिए हम इसको ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस। ओके, यस। तो हमने सीखा पॉलन ग्रेन कैसे डेवलप करेगा। पहले स्ट्रक्चर सीखा, एग्जाइम, एंजाइम। स्ट्रक्चर में स्पोरोपोलिन ऊपर था, हमें पता है स्पोरोपोलिन को आप डिग्रेड नहीं कर सकते हो, तो भाई कोई एंजाइम नहीं है डिग्रेड करने के लिए, तो प्लांट पहले से ही जानता था कि कोई डिग्रेड नहीं कर सकता स्पोरोपोलिन। तो उन्होंने क्या किया, एंजाइम को बाहर जाने था, तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा ऐसा पार्ट बनाया एंजाइम में जहाँ पे स्पोरोपोलिन था ही नहीं। तो उससे क्या हुआ, एंजाइम को बहुत इजी हुआ क्रॉस करने में, और वो एंजाइम पॉलन ट्यूब बना दिया। इजी है ना, समझ आ रहा है, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल बड़ा था, जनरेटिव सेल छोटा था, इन्होंने डिवीजन स्टार्ट किया। वेजिटेटिव ने कुछ नहीं किया, तो वेजिटेटिव का न्यूक्लियस इधर उधर आके यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस आ गया। लेकिन जनरेटिव सेल ने एक और डिवीजन किया, ठीक है, जनरेटिव सेल ने एक और डिवीजन किया, राइट। एंड व्हाट इज दैट, वो क्या है, माइटोसिस। उससे क्या बना आपका, मेल गैमेट्स। कितने मेल गैमेट्स हमने सीखा, कितने मेल गैमेट्स, हाउ मेनी मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स। हाउ मेनी मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स, ठीक है, यस। हाउ मेनी मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स, ओके। अब ये जो स्टेज है, ये जो स्टेज है ये जो स्टेज है पॉलन ग्रेन का, जिसमें आपको 2 मेल गैमेट मिल गया और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस मिल गया, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं पता है, कितना स्टेज है ये, इनमें कितने स्टेजेस आपको दिख रहे हैं, कितने न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं, 1 2 3, कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं, एक आपका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, एक जनरेटिव सेल जब डिवाइड किया 2 मेल गैमेट दिए, तो 2 मेल गैमेट उसमें भी तो आपका न्यूक्लियस है, तो आपको कितने न्यूक्लियस मिले, 3। और पता है ये क्या बोलते हैं इनको हम, सिंस आपको 3 स्टेजेस मिलते हैं, हम इस स्टेज को बोलते हैं 3 सेल्ड स्टेज। ये जो है कौन सा स्टेज है, 3 सेल्ड स्टेज, ठीक है। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द 3 सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन जर्मिनेशन। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस बनाएगा, उस स्टेज को हम बोलेंगे 3 सेल स्टेज। द स्टेज ऑफ पॉलन जर्मिनेशन, the stage of pollen germination when there are 2 male gametes and 1 vegetative nucleus in the entire pollen tube, that is 3-celled stage, ठीक है। आपको पता है कितने सारे प्लांट में जब पॉलिनेशन होता है तो 3 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन निकलता है, 3 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। कितने, लेट्स से 100 प्लांट, ठीक है, मैंने तुम्हें 100 प्लांट एग्जाम्पल के लिए दिया, उन 100 प्लांट्स में एनी आइडिया कितने सारे प्लांट 3 सेल स्टेज में जाएंगे स्टिग्मा के पास, 80, मुस्कान says 80, 3 सेल स्टेज, 40 will go, right, 40%,
40% of the pollen grain, they are released at which stage? 3-celled stage. ठीक है, yes आर्यन। तो 60% जो है वो कैसे जाते हैं फिर, वो क्वेश्चन है ना हमारा। The other 60% plant, how pollen grains are released at which stage? 2-cell stage. Awesome. And 2-cell stage क्या है? ये दिख रहा है आपको 2-cell stage? वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। ये आपका 2-सेल्ड स्टेज है, राइट। 2-सेल स्टेज का मतलब पॉलिन ग्रेन ने वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल बनाया। पॉलिन ग्रेन ने जेनरेटिव सेल को डिवाइड करके दो मेल गैमेट नहीं बनाया, ठीक है। तो पॉलिन ग्रेन प्लांट से कैसे रिलीज होते हैं? या तो 2-सेल स्टेज में या फिर 3-सेल स्टेज में, ठीक है। ओके, तो रिमेनिंग जो 60% प्लांट में पॉलिन ग्रेन कैसे रिलीज होते हैं? 2-सेल स्टेज में। 40% ऑफ द प्लांट में पॉलिन ग्रेन किस फॉर्म में रिलीज होते हैं? 3-सेल। इसका मतलब क्या है? उनमें मेल गैमेट पहले से बन गया, उनमें मेल गैमेट पहले से बन गया। लेकिन इन सब प्लांट में क्या होगा? ये पहले कहाँ जाएंगे? पहले फीमेल फ्लावर पे जाएंगे, उनके स्टिग्मा पे जाएंगे, पॉलिनेशन हो गया। अब इसके बाद आपका जेनरेटिव सेल ये वाला स्टेप लेगा। उसके बाद आपका ऐसा वाला जर्मिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, दो मेल गैमेट बनेंगे और फिर से वो 3-सेल स्टेज में आएगा। समझ में आया? यस, समझला का? या all of you raise your hands if you have understood it. Yes, perfect, awesome. Okay, so we learned 2-cell stage and 3-cell stage of pollen grain germination. जब आपका pollen grain 2-cell stage में है तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टिग्मा में? कि इसको 3-सेल्ड बनना है, क्योंकि हमें मेल गैमेट तो चाहिए ना, तभी तो मेल गैमेट विल फ्यूज विद द फीमेल गैमेट, राइट। बट अगर प्लांट में 3-सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन गया तो उनको मेल गैमेट बनाने की जरूरत ही नहीं है, दे ऑलरेडी हैव इट, ठीक है। वो जस्ट पॉलन ट्यूब से मूव करेगा और कहाँ पहुंचेगा? फीमेल गैमेट के पास। यस, तो ये हो गया आपका पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। विद दिस वी हैव लर्न पूरा का पूरा क्या? स्टैमेन का पार्ट हमने सीख लिया, राइट। हमने क्या सीखा? कि अगर कोई फ्लावर है और उसमें अगर स्टैमेन है बाइलोब्ड, राइट, उसमें अगर एंथर है, उसके अंदर अगर माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसके अंदर अगर स्पोरोजिनस टिश्यू है, राइट, तो क्या होगा उसके पास? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वो क्या देगा आपको? 4 माइक्रोस्पोर्स। वो किस चीज में डेवलप करेंगे? पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन आपको जर्मिनेट करेगा और ये पॉलन ग्रेन दो चीजें में आएंगे, 2-सेल्ड स्टेज एंड 3-सेल्ड स्टेज, है ना। 3-सेल स्टेज में आपको मेल गैमेट मिलेगा, 2-सेल स्टेज में आपको मेल गैमेट नहीं मिलेगा। समझ में आया? कितना इजी था। वी टुक सो मच ऑफ टाइम टू लर्न दिस, राइट। अब सबको याद हो गया? सबको याद हो गया? इट इज देयर इन द ब्रेन नाउ। यस, या यस, ओके श्रुतिका, मुस्कान, ऑसम। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? हमारा पहला टारगेट था मेल गैमेट को देखना, कहाँ से मेल गैमेट बन रहा है, कैसे मेल गैमेट बन रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट इज व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट? यस, फीमेल। नेक्स्ट टारगेट इज व्हाट? कि फीमेल गैमेट हमें कैसे मिल रहे हैं, राइट। आई होप
For some of you, if you have not understood, I am just repeating it once again. एंथर थे, एंथर का स्ट्रक्चर देखा हमने, माइक्रोस्पोरेंजियम था, उसके अंदर टेट्रास्पोरेंजिएट, उसमें स्पोरोजिनस टिश्यू था सेंटर में। जो भी सेल्स मियोसिस किए हम उनको बोले माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, प्रोसेस को हम बोले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मुझे माइक्रोस्पोर्स मिले, वो माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन में डेवलप हुए, वो या तो 2 सेल में रिलीज होंगे या फिर 3 सेल में रिलीज होंगे। जब वो 3 सेल में रिलीज होते हैं उनके पास 2 मेल गैमेट्स होते हैं। यस, गॉट इट? या आर्यन इज आस्किंग अ वेरी गुड डाउट। जनरली नो, दिस डाउट अराइजेस क्योंकि ना बुक में क्या लिखा है आपको, व्हाट आर्यन इज आस्किंग, आई एम जस्ट टेलिंग एवरीवन कि एंथर जब हमने सीखा, हमने बोला कि एंथर कितने लोब्स के हैं, 2 लोब्स के, है ना, बाई लोब। जब आप बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि एंथर इज बाई लोब एंड डाइथिकस, ये है ना, बुक में ऐसा लिखा है ना, डाइथिकस, यस और नो? बुक में डाइथिकस लिखा है। क्यों लिखा है डाइथिकस? क्योंकि बुक में उन्होंने क्या कंसिडर किया है, इंडिविजुअल लोब को कंसिडर किया है। हमने सीखा ना कि ईच लोब हैज 2 थीका, ईच लोब हैज 2 थीका। तो बुक में अगर डाइथिकस लिखा है तो आपका जो बुक है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, एक लोब को, एक लोब को। अगर आप पूरे एंथर को कंसिडर करोगे तो वो कितने थीका है, उसमें टोटल 4 थीका है। ठीक है आर्यन, आई थिंक आप बुक पढ़े होंगे, तो बुक में ऐसा लिखा है कि एंथर इज बाई लोब डाइथिकस, है ना? यस, ऑल राइट, यस। So that is anther. Now we will learn about female gamete. Those who still have doubts that you did not understand, right? Then what you should be doing? Rashmi ma'am, you are here, right? Yes. So Rashmi ma'am can clear your doubt. If possible, ma'am will share the WhatsApp number. If there is any student who did not understand now also, you can ask ma'am. Rashmi ma'am will help you out with your doubts. If you have still any doubts, you can ask her. You can text her privately. She is also co-host. You can text her. She can help you out. She has shared the number also. All right. Now coming to the female gamete, we have taken a lot of time to understand male. Now it is going to be very easy to understand the female megasporogenesis and female reproductive parts. So what is the female reproductive part? Pistil or what? Carpel. Remember, for stamen we were using microsporophyll. For stamen we were using microsporophyll. So for this what we will be using? Megasporophyll. Megasporophyll. ठीक है, मेगा क्योंकि ये मेगा स्पोर्स बनाने वाले हैं, राइट? मेगा क्योंकि ये मेगा स्पोरोफिल्स बनाने वाले हैं, राइट? अभी इसका स्ट्रक्चर पहले सीखेंगे हम। बताइए कौन कौन से पार्ट्स है इसमें कार्पेल में? यस, मेजर कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। ऑसम, यस साक्षी, यस प्रियंका। मेजर कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट, बहुत ही सुंदर डायग्राम बनाऊंगी मैं, देखना। पहला पार्ट क्या है? स्टिग्मा है। उसके बाद क्या मिलेगा आपको? क्या मिल रहा है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? इसको ओवल बनाते हैं ना, ये ओवल है, ये स्ट्रक्चर शुड बी ओवल, राइट? So this is your stigma, right? Style, ovary, right? Stigma, ये आपका हो गया स्टाइल एंड ये आपका हो गया ओवरी,
ये आपका मतलब मोटा मोटी स्ट्रक्चर यही है, 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, अब मैंने बताओ, अब मुझे ये बताइए आप, पॉलन ग्रेन्स जो रिलीज हो रहे हैं प्लांट से, या वो 2 सेल्ड हो या 3 सेल्ड हो, जो भी हो, वो कहाँ आएंगे? वेयर दे शुड बी कमिंग ऑन, दे शुड बी कमिंग ऑन द स्टिग्मा। जब वो स्टिग्मा पे आएंगे, वही तो प्रोसेस आपका पॉलिनेशन है, राइट? दैट प्रोसेस इज पॉलिनेशन। जब आपके पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा पे रिलीज हो जाते हैं, दैट इज योर पॉलिनेशन प्रोसेस। ठीक है? Yes, the process of transfer of pollen grain from anther of the flower to the stigma of the female flower. That process is pollination, right? After this, now can I say that stigma is the receptive surface of pollen grain? Stigma receive कर रहा है ना pollen grain को, तो stigma क्या है आपका? receptive surface of pollen grain। ठीक है? यस। अभी pollen grain यहाँ आके रिसीव होके क्या होगा? उनका जर्मिनेशन होगा। क्या होगा? pollen ट्यूब किधर आएगा? pollen ट्यूब किसके थ्रू आएगा? कुछ दिख रहा है यहाँ पे? कौन सा स्ट्रक्चर है? स्टाइल। ऑसम प्रियंका। तो पॉलन ट्यूब जो आएंगे वो किधर से आएंगे? वो स्टाइल के थ्रू आएंगे। ठीक है? तो स्टाइल किस चीज में हेल्प कर रहा है? स्टाइल इज हेल्पिंग इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स वेयर? टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट। हम सीखेंगे फीमेल गैमेट कहाँ है, वो तुमको सीखना है। ठीक है? तो ये आपका 2 पार्ट हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे स्टैमेन में एंथर था, वैसे ही पिस्टिल में ओवरी है। हमने स्टैमेन में एंथर में देखा ना माइक्रोस्पोरेंजियम मिला, उसी तरह ओवरी में हमें क्या मिलेगा? मेगास्पोरेंजियम मिलेगा। ठीक है? स्टैमेन में हमें क्या मिला था? एंथर में हमें क्या मिला था? माइक्रोस्पोरेंजियम। सिमिलरली हमारा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हमें फीमेल गैमेट देगा फ्यूचर में, वो क्या है? ओवरी। तो हम अब क्या सीखेंगे? हमारा इंटरेस्ट अभी भी क्या है? फीमेल गैमेट ही है। हम अभी भी गैमेट्स ही देख रहे हैं, कैसे गैमेट बनेगा। और ये आपका एग है ना? फीमेल गैमेट क्या है? एग है। ठीक है? ये भी आपका एन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप सोचो। दिस शुड ऑल्सो बी एन, नो? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मियोसिस होगा, क्योंकि ये सारा स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है आपका? 2n है। इसका मतलब अगर मैं बोल रही हूँ ओवरी में यू हैव मेगास्पोरेंजियम, तो मेगास्पोरेंजियम में कौन सा प्रोसेस होगा? मियोसिस या माइटोसिस? मियोसिस है ना? तभी मेगास्पोरेंजियम आपको मेगास्पोर्स देगा। यस, ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट। इफ यू अंडरस्टूड मेल गैमेट फॉर्मेशन प्रॉपरली, आपको ये भी बहुत इजीली समझ आ जाएगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जैसा प्रोसेस था, सिमिलर प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस भी है। डिफरेंस ये है कि मेगास्पोरोजेनेसिस में आपको मेगास्पोर्स मिलेंगे जो आपको फीमेल गैमेट देगा, राइट? और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे जो आपको मेल गैमेट देगा। ठीक है? अब हम सीखेंगे ओवरी। ठीक है? जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमें हेल्प करने वाला है फीमेल गैमेट ऑब्टेन करने में। ठीक है? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? यस, रेज योर हैंड्स इफ यू आर फॉलोइंग मी। यस, परफेक्ट, ऑसम, ऑल राइट। ओवरी का स्ट्रक्चर देखते हैं। अंडा, राइट? सो व्हाट इज द शेप ऑफ इट? ओवल। क्या शेप है इसका? ओवल शेप है ना? अब ओवरी के अंदर कुछ मिलता है, पता है क्या?
What do you get inside the ovary? What do you get inside the ovary? ओव्यूल, है ना? ओव्यूल मिलेगा हमें. ओवरी के अंदर हमें क्या मिलता है? ओव्यूल मिलता है. तो मैंने ओव्यूल भी बना दिया यहाँ पे. ठीक है, ये आपका ओव्यूल है और ये आपका ओवरी है. ठीक है, ये जो ओव्यूल है इसको ही हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम. ठीक है, ओव्यूल को हम बोल सकते हैं, ये क्या है? इंटेग्यूमेंटेड माइक्रोस्पोरेंजियम. अब मैं इसे इंटेग्यूमेंटेड माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों बोल रही हूँ? दैट इज योर होमवर्क. ओके, I told you that ovule is called as integumented megasporangium. You need to find this out. पहला homework. दूसरा homework, same thing you have to do. Deepali, I saw that you texted me that you did not understand second 2 cell and 3 cell stages. I want you to go back and recall. Sit back and recall and then see again where you are not understanding things. I know that almost all of you have understood. But if there is any single doubt also, you sit back and then think what all things we learnt in the class. So second homework is to recall. Third homework is to find out what is nucellus. What is nucellus? What is nucellus? Can this be done? Can this homework be done? Raise your hands. Yeah? Yes, you need to find out what is nucellus. Recall whatever is taught to you. Whenever I say recall, means you need not open the book. Close the book, sit, relax, just think what is taught in the class. Yes, whatever you don't understand, whatever you forget, that you can after that see. Right? And the first homework was what? Why? Integumented microsporangium. Cool? All of you understood today's class? Yes? Children, raise your hands if you have understood. Yeah, do we have any student from CBSE? Yeah, CBSE students, raise your hands. Did you all understand? Yeah? Perfect. State board, did you all understand? Yeah, okay, Munshi has already answered. Awesome. That's why it is called as integumented megasporangium. Yes, Munshi, you are right. Perfect. Yes. So let other students also do the homework. Then I will share it in tomorrow's class. All right. Did you all download the book? Try downloading the book from the link. You need to select class. Yes, Muskan has downloaded. Class, board, which book you want to download. You can download all the books from that site. Okay? Yes? Thank you. Bye-bye. Take care. See you tomorrow.